Hi Shikha, thank you for sharing the videos. And there were a few things which I wanted to point out and wanted to bring to your notice. So I thought it will be a better idea if I record and send it to you rather than writing and typing so much, and it is always better to send a recording. So first and foremost, we need to understand that when we are trying to give the child any form of learning, not only a hearing impaired child or a child with a cochlear implant, when we are trying to teach a child anything, you have to understand that if we are going to try to teach him something new, we want his brain and his senses to be active and responsive. सो आपने अगर बच्चे को कोई भी नई चीज़ सिखानी है तो सिखाने की जगह सही होनी चाहिए. So what I'm trying to say is that whatever therapies that you're taking at home are being done with the bed as the main place where Joshan is being made to sit or practice. So first thing which you have to do is that घर में कोई भी एक corner, कोई भी एक जगह dedicatedly ऐसी बनाओ where you're going to make Joshan sit down and do his practice. His practices will not be done on a place like a bed. The bed is a place where the brain understands that this is the place for me to retire and to relax. So if you want the brain to have a new learning while sitting on a bed, this is not how the child will learn. The overall ratio in which the child will comprehend and understand things on a bed vis-a-vis a dedicated place for his learning, you will see a huge improvement, a huge change. So what you need to do is find out a corner in the house, any छोटा सा corner, and put a small dari or a carpet there. अगर दरी कारपेट नहीं है, nothing, no worries, just take a double bed का bed sheet, fold it up and put it in one corner. Keep a smaller chair for Joshan, keep a separate chair for you, and a simple small table or a planter like we have in the clinic here, or the planters which we use to have a meal while we are sitting on the bed. कुछ उस तरह का ले लो, and a small basket or a jute bag or something in which you keep all these items. So if you are doing the therapy at the right time and at the right place, then you are stimulating the brain to understand better, to learn more easily. So say for example, you have decided that the time at which you're going to make Joshan practice is, say for example, 5 o'clock in the evening. So every day at 5 o'clock in the evening, you're going to say, Joshan, chalo, 5 baj gaye hain, let's go and do our practice. And you hold his hand and take him to that area which you have designated for teaching him. So every day at 5 o'clock, Joshan, chalo, 5 baj gaye hain, time for our practice. So every day when you keep repeating the same phrases, not only for practice but for other things as well. Say for example, गुड मॉर्निंग जोशान, उठ जाओ, 7 o'clock हो गए हैं मॉर्निंग में, गेट अप. या ओके जोशान, लेट्स गेट अप, इट इज 7:30, लेट्स गो एंड टेक अ बाथ, लेट्स गेट रेडी. और वंस यू आर ड्रेसिंग हिम अप, ओके जोशान, इट इज 8 o'clock, टाइम टू गेट ड्रेस्ड अप, we are going to wear the school uniform. So make sure that you are making him relate things with the timing and the place where that activity is happening. नहाने के लिए बाथरूम जा रहे हो तो बोलो कि ओके अब हम नहाने जा रहे हैं, या अब हम हैंड वॉश करने जा रहे हैं, हमने खाना खा लिया, इट इज़ 2:30, हमने अपना लंच फिनिश कर लिया, अब हम हैंड वॉश करने बाथरूम जाएंगे. टाइम बोलो, जगह का नाम बोलो, जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो उतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो. सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज, एक स्पेसिफिक जगह बनाइए घर में, किसी एक कॉर्नर में एक छोटा टेबल, एक छोटी चेयर, एक बड़ी चेयर और एक बास्केट जिसमें आपका सारा थेरेपी मटेरियल रखा जाएगा. तो आगे से बेड के ऊपर बैठ के कोई प्रैक्टिस या बेड के ऊपर बैठ के किसी तरह की थेरेपी नहीं होनी चाहिए. हर रोज उसी जगह पे जो आपने डेडिकेट करी है थेरेपी के लिए, वहीं पे बच्चे को प्रैक्टिस करानी है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज शिखा, कि जब हम थेरेपी करा रहे हैं या जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो जो करा रहा है या सिखा रहा है, चाहे वो थेरेपिस्ट है, चाहे वो मदर है, चाहे वो टीचर है,
द वे यू आर स्पीकिंग टू द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत गुस्से में और बहुत चिड़चिड़े होके प्रैक्टिस नहीं करा सकते. चलो सुनो, सुन रहा है कि नहीं. हमें बच्चे को सुनाई का जो प्रोसेस है या लिसनिंग का जो प्रोसेस है, इट हैज़ टू बी अ फन एक्टिविटी. इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी लुक फॉरवर्ड टू बाय द चाइल्ड. बच्चे को हर रोज वेट करना चाहिए उस थेरेपी का. बच्चे को हर रोज वेट करना चाहिए कि अब मेरी प्रैक्टिस होगी. ही शुड बी हैप्पी अबाउट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि थेरेपी का मतलब है कि अब मुझे दनादन नॉन स्टॉप डांट पड़ेगी या अब दनादन मुझसे गुस्से वाली टोन में बोला जाएगा. So secondly, the intonation in which you are speaking to Joshan has to be very loving. It has to be very supporting. It has to have a very tender tone about it. कि Joshan, चलो ध्यान से सुनते हैं. And you say, you give a sound maker. For example, you take a box with something and you make that sound. सुना? आवाज आई? Very good. चलो connect करो. So it has to be a very encouraging tone. It does not have to be a tone जहाँ पे ऐसा लगे कि बच्चे को डांट पड़ रही है या बच्चे को डरा के कुछ करवाया जा रहा है. So intonation of the mother again is a very important point. Third thing which we have to keep in mind is that Joshan has started wearing implants on both sides. If you are wearing the implants and the stimulus जिस पे आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, अगर आप उसका लेवल बहुत हाई रखोगे तो जोशान को आदत पड़ जाएगा ऊंची आवाज पे जवाब देने का. ही विल अंडरस्टैंड कि जोशान चलो, थी रखो रखो. ही विल बी इन अ हैबिट ऑफ रिस्पॉन्डिंग एट हायर लेवल्स. सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्पीकिंग टू हिम एट अ वेरी नॉर्मल लेवल. यू गिव द साउंड. से फॉर एग्जाम्पल, जोशान सुनाई दिया, सुनाई दिया. Very good. Connect करो. It doesn't have to be very loud. सुनो, सुनो. No, that is not how we are going to do. So the level, the loudness level at which you are working with the child has to be that level at which you would probably talk to Kahan or you would probably talk to your husband or any normal hearing person. It doesn't have to be very loud. All right? Then the next thing is the terminology or the words which you are using have to be very specific. When you are giving a stimulus, Shikha, say for example you are clapping or you are giving the sound of those beads in a box or you are using a water bottle, don't use the word thi. That is not the correct phrase which has to be used. You have to use the phrase सुना आपने, आपको सुनाई दी आवाज. Did you hear that? आपने सुना बॉक्स की आवाज, आपने सुनी पानी की आवाज, आपने सुनी बेल बजी. सो डोंट से द वर्ड थी. यूज द वर्ड सुनाई. सुनाई दिया, आपने सुना, सुना आपने. डिड यू हियर दैट? मुझे तो घंटी की आवाज आई, आपको आवाज सुनाई दी. तो द करेक्ट वर्ड, द करेक्ट फ्रेज हैज टू बी यूज्ड. थी नहीं थी इज वेरी रैंडम and should not be used with the child. And the last thing is that when you are teaching the child, you have to understand कि जब आप थेरेपी करवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो मैं थेरेपी करवा रही हूँ या अगले 10 स्टिमुलस जो मैं दूंगी, क्या मैं डिटेक्शन के लिए करवा रही हूँ या मैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए करवा रही हूँ. डिटेक्शन का मतलब है बच्चे का ये समझना कि आवाज़ प्रेजेंट है, साउंड प्रेजेंट है या साउंड प्रेजेंट नहीं है. So for the purpose of detection, just use a single stimulus. You have to understand that you are using a single stimulus of a particular frequency. तो अगर आप डब्बा यूज कर रहे हो आवाज के लिए तो उसको 10 टाइम्स आपने डब्बा यूज करना है. छन छन छन, या सपोज आपने वो बॉक्स यूज किया है, या से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है जोशान सुना, सुनाई दिया, वेरी गुड. कनेक्ट करो. ही कनेक्ट्स इट. उसके बाद आपने जब सेकेंड टाइम, अब ये जो आपने कनेक्ट करा, रिस्पॉन्स आया कि नहीं, क्विकली टेक अ पेंसिल एंड पुट अ टिक कि रिस्पॉन्स आ गया. सेकेंड टाइम आपने किया, सुना, ही इज ब्लैंक, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो बिफोर यू डू द थर्ड टाइम पुट अ क्रॉस कि नहीं सुनाई दिया.
थर्ड टाइम ही रिस्पॉन्ड्स, पुट अ टिक. सो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी. या अपने वीडियो को आप इतना लंबा अगर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो वीडियो बाद में प्ले करके रीप्ले करके आपको नोट बनाना पड़ेगा कि आउट ऑफ 10 टाइम्स डिटेक्शन कैसी थी इस पर्टिकुलर साउंड के लिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड के लिए. तो बार बार स्टिमुलस चेंज नहीं करना बहुत जल्दी. डिटेक्शन जब आप करवा रहे हो, लो फ्रीक्वेंसी साउंड का डिटेक्शन 10 टाइम्स, मिड फ्रीक्वेंसी का डिटेक्शन 10 टाइम्स, हाई फ्रीक्वेंसी का डिटेक्शन 10 टाइम्स, 15 टाइम्स. तो डिटेक्शन एक्टिविटी में सिर्फ डिटेक्शन करवाओ, डिस्क्रिमिनेशन मत करवाओ. सिमिलरली जब आप डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी करवा रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी का मतलब ये डिफरेंस करवाना या ये फर्क करवाना या ये डिस्क्रिमिनेट करवाना कि किस चीज की आवाज थी, तो उसमें जो रिस्पॉन्स क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा चेंज करिए. सो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करवा रहे हो एक डिब्बी के बीच में और बॉटल में पानी की आवाज के बीच में, तो सामने टेबल पे एक छोटा सा A4 साइज का वाइट पेपर बनाओ और साइड पे आप डिस्क्रिमिनेट करवाओ कि ये वाली आवाज थी कि ये वाली आवाज थी, कौन सी आवाज सुनाई थी. तो अगर आप डिब्बी की आवाज कर रहे हो एंड देन शो इट टू हिम कि वॉज इट दिस साउंड, and he puts a tick or he puts a sticker or he points to that sound कि हाँ ये वाला साउंड था. या जब आपने पानी की आवाज करी तो देन आपने सुना पानी की आवाज and then he points to the water bottle. So like that. So either it can be a paper pen activity या जो स्टिमुलस आप यूज कर रहे हैं, जैसी डिब्बी में आपने चने या जो भी सामान भर के आप मूव कर रहे हो, वैसी एक और खाली डब्बी आपने सामने रखी और जैसे ग्रीन बॉटल में आप पानी भर के वो पानी की आवाज कर रहे हो, वैसी एक ग्रीन बॉटल आपने बच्चे के सामने रखी. सो इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ टिक, ही जस्ट पॉइंटिंग कि ये वाली आवाज मैंने सुनी कि ये वाली आवाज मैंने सुनी, दिस वन और दैट वन, दिस वन और दैट वन. So this is a discrimination task. So detection activity has to be done differently and discrimination activity has to be done differently. धीरे धीरे level of severity, level of difficulty आपने increase करनी है in the discrimination task. So अगर अभी तक there are two things which you are using to give the stimulus and the similar two things you have kept in front of him, then probably you can change it a little bit, that when you hear the bottle, then you put the green bindi on the bottle or you put the green bindi on the sheet which is kept there, and when you hear the blue dabbe ki awaaz, then you put a blue bindi. So you just have to become creative, use colored blocks, use छोटी कोल्ड ड्रिंक्स के जो ढक्कन आते हैं डिफरेंट कलर्स में उनको यूज करिए, बैंगल्स यूज करिए, बिंदियां यूज करिए, शार्पनर्स यूज करिए, छोटा सुंदर सस्ता टिकाऊ सामान जो कि आपको अलग अलग कलर्स में मिल सकता है. कीप एन आई ओपन फॉर इट कि उसको मैं कैसे कैसे कलेक्ट करूं. सो यू शुड नो कि मेरे पास कोक के 5 ढक्कन हो गए हैं, तो अब मुझे अगली बॉटल जो खरीदनी है वो स्प्राइट की खरीदनी है ताकि मेरे पास 5 ग्रीन ढक्कन हो जाए, या 5 थम्स अप की बॉटल्स लेनी है ताकि मेरे पास 5 ब्लू ढक्कन हो जाए. सो जस्ट कीप कलेक्टिंग स्मॉल लिटिल थिंग्स विद यू and try to keep your activities interesting and dynamic every day. So place where you're doing the therapy, loudness at which you're doing the therapy, intonation in which you are speaking to the child while you're doing the therapy, the phrases which you are using, instead of थी you have to use the phrase like सुनाई दिया या आपने सुना या मुझे तो ये आवाज आई आपने ये आवाज सुनी. प्लस एक डिफरेंस रखना बिटवीन डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी. इन सारी बातों का ध्यान रखिए, एक जगह बनाइए और मुझे फिर वो जगह पे आप कैसे काम करवा रहे हो उसका वीडियो बना के भेजिए. अगर जगह से रिलेटेड या कोई एक्टिविटी से रिलेटेड बात नहीं समझ में आ रही, यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस इट विद मी. आई विश यू ऑल द बेस्ट शिखा, यू आर डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड, कीप गोइंग ऑन.